Welcome to Reading Comprehension Session 5. I am back with a CAT 2025 Slot 2 passage. The level remains moderate. This time I've chosen a passage based on the theme of adaptation and evolution. The theme related to adaptation and evolution, especially under extreme environmental conditions, which shows how loss and enhancement coexist in nature, has been a popular theme, and you are likely to get such passages in the future as well. Usually, the source of such passages remains a popular science magazine or an article. Discussion on evolutionary biology remains very favorite and popular. Usually, such write ups have an expository style of writing. There could be a blend of research and exploratory, narration and commentary. Also, such write ups are analytical, they are curious, and sometimes they also display a sense of wonder. Authors are likely to be related to either science journalism because the content, even though contains a scientific blend, it has research orientation, but since it is meant for common people, usually it is simplified so that it gets accessible to the general audience. कहने का मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब कैसे प्राणियों का विकास हुआ, फ्लोरा और फौना कैसे इस प्लैनेट पे डेवलप हुआ, उनमें वेदर एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के हिसाब से क्या चेंजेस आए, ऑर्गेनिजम्स ने कैसे खुद को वातावरण के हिसाब से ढाला, एडजस्ट किया, और अगर कोई एक पर्टिकुलर एबिलिटी या एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑर्गेनिज्म से छूटती भी है, तो एडेप्टेशन से ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी स्किल को डेवलप कर लेता है जो इस वीकनेस या हैंडीकैप को ओवरकम करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम देखें, अगर हमारे पास आई साइट नहीं है, स्पेशली पीपल हु हैव लॉस्ट देयर आई साइट, they develop other skills which compensate for the handicap. So this remains a common theme. Let's have a look at the passage. You may pause the video. कुछ माइलस्टोन मैपिंग यहाँ पे हम जल्दी से कर लेते हैं. Topic is Mexican tetra fish. राइट अप इज प्रिटी रीडेबल, पढ़ने में राइट अप आसान है. ऑथर का इंटरेस्ट रिसर्च में, स्टडीज में दिख रहा है. राइट अप हैज अ कोटेशन. कोटेशंस पे हमेशा ध्यान देना चाहिए. कोटेशन बेस्ड राइट अप्स रेफरेंसेस दिखाते हैं और फिर अक्सर इनके सोर्सेस को ट्रेस किया जाता है. सो एज आई सेड, द टॉपिक इज मेक्सिकन टेट्रा फिश and it says that their eyes disappeared. Now comes the question, why did the eyes disappear? So that is primarily because of the fact that they were swept into a cave. केव के अंदर अंधेरा था जहां मेक्सिकन टेट्राफिश शायद बहकर आ गई थी. नाउ दैट देयर वाज नो लाइट इनसाइड द केव, तो फिश को आंखों की जरूरत भी नहीं थी. शायद यही रीजन रहा होगा कि उनकी आंखें डिसअपियर हो गई. आगे ये लिखा है कि कैसे आंखों का जो डिसअपियरेंस है, जो हैंडीकैप है, दिस वाज इन अ वे कॉम्पनसेटेड बाय सेवरल एनहांसमेंट्स. सो द फिश मस्ट हैव अडेप्टेड टू दिस पर्टिकुलर environment, and it must have developed certain skills, certain abilities which probably normal fish would not have. Let's have a look. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि even though there was a handicap in terms of not having eyes, these fish could detect lower levels of amino acids than surface fish. So we see a comparison between the Mexican tetrafish and a normal fish, and we see that the Mexican tetrafish have developed certain abilities that were better than normal fish. Now these include the ability to sense lower levels of amino acids, और आगे ये लिखा है they had more taste buds, higher density of sensitive cells. So in a nutshell, the very first paragraph introduces
this topic of adaptation and evolution in the Mexican tetra fish. The change in its habitat also led to a change in the overall ability of the fish to adapt to this changed environment. In one line, we can say that the Mexican tetra fish, even though it lost its eyes, but it developed better, stronger sensory abilities to compensate for this handicap. तो जैसे मैंने डिस्कशन के शुरुआत में भी कहा, एवोल्यूशन में हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब कोई एक कमजोरी प्राणी में आती है तो उसकी जगह पर कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स डेवलप हो जाती हैं जो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में मदद करती हैं. मूविंग ऑन, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर हम जल्दी से कुछ माइलस्टोन मैपिंग कर लेते हैं. यहाँ पे आगे आंखें जो जाती रही मैक्सिकन टेट्राफिश की उसका जिक्र हो रहा है और ये लिखा है कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस ही थी फॉर्मेशन ऑफ द आई की, उसको आगे चल करके किल कर दिया जाता है और जो नॉन केव ड्वेलिंग मेंबर्स हैं स्पीशीज के, दे develop eyes, right? Every organism develops eyes. Similarly, cave fish also develop eyes initially, but then they just kill these eyes that they have created. Now comes the question, why do they do so? अगर आंखों को मिनिमली बनाने के बाद उसको खत्म ही करना था तो फिर केव फिश उसको डेवलप ही क्यों करती है? तो एक यहाँ टर्म यूज किया गया है, इनएफिशिएंसी में बी अनअवॉइडेबल. मतलब ऐसा करना शायद कोई मजबूरी है डेवलपमेंट की कि एक बार आंखें डेवलप होंगी फिर उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा. नाउ दैट मे साउंड इनएफिशिएंट, बट एज वी रीड द पैराग्राफ वी रियलाइज दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द रिसर्चर्स थ्रू अ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म. और यहाँ लिखा है द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द आई आर कंप्लीटली इंटरट्वाइंड. मतलब आंखों का और ब्रेन का डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. तो अगर आंखों का डेवलपमेंट होगा ही नहीं तो शायद फिर ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट और आंखों का डेवलपमेंट चूंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो जरूरी ये है कि दोनों चीजें एक साथ हों. और फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो चीज जरूरी नहीं है, जैसे केव के अंदर आंखों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आंखों को जो है वो प्रोसेस खत्म कर देती है. लेकिन दोनों चीजों का एक साथ पहले डेवलप होना जरूरी है. तो ये जो इनएफिशिएंसी में भी अनअवॉइडेबल लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा करना लीस्ट डिसरप्टिव प्रोसेस है. जैसे नॉर्मल फिश में आंखें डेवलप होती है वैसे ही केव फिश भी अपनी आंखें डेवलप करती है, लेकिन फिर उसके बाद में वो आंखों को डिस्ट्रॉय कर देती है. करेक्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट हाउ the tetra fish, they are able to survive on a meager diet because inside the cave the overall possibility of food is not very high. वहां पर क्या अवेलेबल है ये सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है. So in one line we can say that cave fish, they evolved or they adapted by losing unnecessary traits like their eyes while developing adaptations that could improve their survival in the न्यूट्रिशन डेफिशिएंट केव एनवायरनमेंट. और इसके लिए उन्होंने कुछ अपने एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज जो है उनको डेवलप किया. और आंखों का बनने के बाद लूज करना भी एक मैकेनिज्म है जहां पर ब्रेन डेवलपमेंट और आई डेवलपमेंट इंटरट्वाइंड है. और इसीलिए शायद आंखें पहली बनाई और फिर आंखें डिस्ट्रॉय हुई. सो दिस इज इंटरकनेक्टेड. मूविंग ऑन, the next paragraph talks about how fats are stored by the Mexican tetrafish. नॉर्मल केस में जो फैट का स्टोरेज है उसको टॉक्सिक बताया जाता है, as the very first line says that fats can be toxic for tissues. There is a reference to an evolutionary physiologist, निकोलस रॉनर. पूरे पैसेज में ही 3-4 ऐसे रिसर्चर्स का जिक्र है जिससे ये पता चलता है कि पैसेज में रिसर्च ओरिएंटेशन है. और यहाँ पे लिखा है कि जो फैट्स हैं वो टिश्यूज के लिए टॉक्सिक होते हैं और इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा फैट ह्यूमन बींग्स में और कुछ अदर एनिमल्स में स्टोर हो जाता है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इससे आता है.
लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिकन टेट्रा फिश है, केव फिश है, उसमें फैट बहुत सारा स्टोर्ड है, और एंड डिस्पाइट दैट वी डू नॉट सी मेनी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन इन देयर फैट टिश्यूज, right? If the same happens with normal fish, fish with eyes, that is the fish outside the cave, they are likely to develop inflammation, but this doesn't happen in case of the cave tetra fish. और फिर ये भी कहा गया है कि जो टेट्रा फिश का फैट है वो यूजुअली ब्राइट येलो कलर का है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स। और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो जो जिसका जिक्र अक्सर ग्रैंड मदर्स किया करती थी। ऐसा मानते हैं कि कैरेट में ये पाया जाता है और इसका कलर येलो है। आगे शायद इसके क्वालिटी को भी डिस्कस किया जाएगा कि ये जो येलो फैट है ये किस तरह से केव मैक्सिकन टेट्रा फिश को एडवांटेज देता है ओवर नॉर्मल फिश, और क्यों इसके स्टोरेज होने के बावजूद इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। सो वन कैन प्रिडिक्ट दैट the yellow fat is probably a reason for low inflammation or almost negligible inflammation despite having a large presence of fat in the cave Mexican tetra fish. Moving on, but before that we can summarize this paragraph in a sentence. So we can safely say that cave fish are adapted to survive for extended periods uh, of food scarcity. And how do they do it? They do it with the help of storing a large amount of fat, and surprisingly they do not suffer the repercussions of storing fat, that is inflammation, which can be seen in other animals. And then there is a slight reference to the yellow fat, जिसका जिक्र शायद अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें चेक करना चाहिए। मूविंग ऑन, once again reference to Riddle, who happens to be a researcher, and over here there is an interesting observation. Riddle says that there's no link between eye presence or size and the accumulation of carotenoids. मतलब ये जो येलो फैट है इसका कोई कनेक्ट आईज होना या आईज ना होने से नहीं है। एक तरह से थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है, पर इसे और आगे पढ़ लेते हैं और यहाँ पर क्या लिखा है। तो हालांकि येलो फैट जो है ये आईलेस फिश में और फिश विथ आईज दोनों में देखने को मिल सकता है, लेकिन शायद कैरोटिनॉइड्स का जो प्रेजेंस है इसका जो एडेप्टेशन है टेट्रा फिश में ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने के लिए ही होता होगा, ऐसा यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है। सो वी हैड गेस्ड इट राइट, it is the presence of the yellow fat owing to the carotenoids, which is probably the reason why chronic inflammation doesn't develop in tetra fish. इसको भी एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करते हैं। So we can say that researchers have been able to observe that it is the carotenoid buildup in cave fish is इट इज अनरिलेटेड टू आई लॉस। इसका आई लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन विच इज कॉज्ड बाय द स्टोरेज ऑफ फैट, स्पेशली व्हेन द फिश ओवर ईट। तो आई डेवलपमेंट होना ना होना, आईज होना ना होना, इसका कैरोटिनॉइड बिल्डअप से कोई रिलेशन नहीं है। एक तो ये क्लियर कट ऑब्जर्वेशन था, और दूसरा ये कि low inflammation in tetrafish is because of the presence of this yellow fat, and which is a result of accumulation of carotenoids. Moving on, now that brings us to the end of the passage. Now we have these questions. Questions को solve करने से पहले एक बार सारे माइलस्टोन्स को फिर से जल्दी से मैप कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पैसेज को सॉल्व करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है। सो वंस अगेन आई विल ट्राई एंड present the theme in a nutshell. So as we had discussed right at the beginning, the theme remains adaptation and evolution under extreme environmental conditions, and it shows how loss and enhancement can coexist in nature in the context of the cave Mexican tetra fish. इसका सोर्स, जैसा कि मैंने पहले भी सोचा था,
एक पॉपुलर साइंस आर्टिकल या मैगजीन हो सकती है जिसमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का डिस्कशन हो रहा है और केव ड्वेलिंग मैक्सिकन टेट्रा फिश के एडेप्टेशन और एवोल्यूशन को डिस्कस किया गया है। पैसेज की स्टाइल एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इज एक्सपोजिटरी एंड साइंटिफिक. इट इज अ ब्लेंड ऑफ research findings and it also gives an explanatory narration and an expert commentary. Expert commentary मैंने इसलिए कहा क्योंकि 3 से 4 रिसर्चर्स के ऑब्जर्वेशंस का यहाँ जिक्र हो रहा है. टोन एनालिटिकल है, थोड़ी क्यूरियस है क्योंकि ऑथर जानना भी चाहता है, इंफॉर्मेटिव है और कई जगहों पर एक साइंटिफिक वंडर का सेंस भी नजर आ रहा है. ओवरऑल एन इंटरेस्टिंग रीड. Author is likely to be a science journalist or a popular science writer, and probably he is trying to interpret biological research for general audience. Research oriented writings भी जब आरसी के फॉर्म में आती हैं तो हायर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि ये कोई बहुत हार्डकोर साइंटिफिक जर्नल्स नहीं होते हैं, बल्कि कॉमन लोग साइंस की चीज़ों को समझ सकें इस हिसाब से आर्टिकल्स को सिंप्लीफाई किया जाता है. सो जर्नलिस्टिक राइटअप्स आर मोर लाइकली टू बी देयर, ये दिमाग में रखना चाहिए. पैसेज रिमेन्स एनालिटिकल. Question number 1 is on screen. All of the following statements from the passage describe adaptation in Mexican tetra cavefish except. तो यहाँ पर ये except पे ध्यान देना चाहिए, which means out of 4 options, 3 of the options talk about adaptation in Mexican tetrafish. Mexican tetrafish ने अपनी एक कमी को कॉम्पनसेट करने के लिए कई सारे अडेप्टेशंस किए जिसमें उनके सेंसरी परसेप्शंस एनहांस हुए, उन्होंने फैट स्टोर किया और लंबे समय तक न्यूट्रिशन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में रहने के हिसाब से उन्होंने अपना जो स्किल सेट है उसको एनहांस किया. तो ये सारे तो उनके अडेप्टेशन के पैरामीटर्स हैं. एक्सेप्ट में कोई ऐसी बात हो सकती है जो इससे या तो ऑपोजिट हो या पैसेज के स्कोप से बाहर हो. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. A says since relatively little lives or grows in their caves, the fish are likely surviving on a meager diet of mostly bat feces and organic waste that washes in during the rainy season. This is very clearly and categorically written in the passage. ये एकदम factual है. ये adaptation को यहाँ पर justify भी कर रहा है कि चूंकि बहुत थोड़ा सा ही वहाँ पर न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है तो उसी पर इनको सरवाइव करना पड़ता है, तो फिर उसी हिसाब से इन्होंने शायद अपने आप को डेवलप किया और अडेप्ट किया. बी सेज इट इज easy to see why cave fish would be at a disadvantage if they were to maintain expensive tissue they aren't using. बिल्कुल ये बात भी सही है, जिस चीज की जरूरत नहीं तो फिर उसको कैरी क्यों करना. केव फिश ने भी ऐसा ही किया, उनको आंखों की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने उसको हटा दिया. C says even in their sparse cave conditions, wild cave fish can sometimes get very fat, says Riddle. This is again very clearly written. They store a lot of fat to compensate for the scarce food resources available. और जिसे कैरोटिनॉइड कहा गया है जो येलो कलर का है, बिल्कुल परफेक्ट है. ये भी एडेप्टेशन का एक तरीका है. ए बी और सी तीनों ही सही लग रहे हैं. सो बाय एलिमिनेशन द करेक्ट ऑप्शन हैज टू बी डी. लेट्स चेक डी में क्या लिखा है. So D says, but when these cells get too big, they can burst, which is why we often see chronic inflammation in humans and other animals that have stored a lot of fat in their tissues. Now, this is something which talks about fat being responsible for inflammation in humans and other animals, but this tells nothing about the adaptation in the Mexican tetra cave fish. Directly ये जो statement है ये मैक्सिकन टेट्राफिश के अडेप्टेशन को किसी भी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, बल्कि एक अलग ही पॉइंट पर डिस्कशन कर रहा है. सो स्टेटमेंट नंबर डी इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड हेंस वी कैन मार्क इट एज द राइट आंसर. ए बी सी तो पूरी तरह से पैसेज से जुड़े हुए हैं, वहीं से डिराइव्ड हैं और वो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं अडेप्टेशन को. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स why the apparent inefficiency is unavoidable? Before answering this, let's try and figure out what is the apparent inefficiency.
तो पैसेज में ये लिखा था कि एक बार आंख को पहले डेवलप किया और फिर उसे डिस्ट्रॉय किया, आखिर ऐसा क्यों किया टेट्राफिश ने? तो इसको अपेरेंट इनएफिशिएंसी कहा गया है और उसको अनअवॉइडेबल भी कहा गया है। अनअवॉइडेबल इसलिए है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट और आई डेवलपमेंट ये इंटरट्वाइंड है, ऐसा पैसेज में लिखा हुआ था। तो अगर हम एक को पहले से ही हटा देते तो शायद ब्रेन डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाता। सिंस बोथ द एक्टिविटीज, बोथ द डेवलपमेंट्स आर इंटरट्वाइंड, इसीलिए एवोल्यूशन के टाइम में दोनों चीजें होती हैं और फिर एक बार आंख बनने के बाद the fish decides to do away with it because it is not required, but brain is obviously required, तो फिर brain के development को hamper नहीं होना चाहिए और दोनों processes intertwined हैं। ये भी पैसेज में लिखा था कि ऐसा करना ही least disruptive है। So these points to be kept in mind. Let's have a look at the options. A says Mexican tetrafish are similar to non-cave dwelling variants in their early stages of development. पैसेज में ये बात कही गई है और चूंकि दोनों सिमिलर है मतलब दोनों में जो नॉर्मल डेवलपमेंट्स हैं जिस तरह से होते हैं वो होते हैं। नॉर्मल फिश में भी आई डेवलपमेंट होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, मैक्सिकन टेट्रा फिश में भी होता है और इस तरह से देखें तो दोनों सिमिलर हैं। ये पॉइंट सही लग रहा है पढ़ने में, वी कैन होल्ड इट ऑन। लेट्स मूव ऑन टू बी। The inefficiency resulting from eyelessness is compensated by the enhancements like more taste buds. While this is factually correct, this does not explain the apparent inefficiencies unavoidable. ये एक अलग पॉइंट है और ऑप्शन बी में जो बात लिखी गई है वो एक अलग पॉइंट है। ऑप्शन बी एक तरह से पैसेज की थीम है कि एक चीज अगर मिस होती है तो दूसरे चीज से वो कॉम्पनसेट हो जाती है, जबकि यहाँ पर कुछ और पूछा गया है। यहाँ ये पूछा गया है कि ये आंखों को बनाना और फिर डिस्ट्रॉय करना ये अनअवॉइडेबल क्यों है, जिसका कि सही आंसर ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट और आई डेवलपमेंट इंटरट्वाइंड है, which means B, even though factually correct as per the passage, does not answer the question. This is a trap. Statement C says the lack of light in the caves kills the eye cells in the developing Mexican tetra cave fish embryo. तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये अपेरेंट इनएफिशिएंसी को और इनिशियल आई डेवलपमेंट को अनअवॉइडेबल प्रूव नहीं कर पा रहा है और इसीलिए इसे भी हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मान सकते हैं। The caves have poor and inconsistent availability of food. ये factually correct है, but once again this is unrelated to the topic. तो ध्यान ये रखना है कि simply because certain statements are factually correct or they are mentioned in the write-up, it doesn't mean they answer the question correctly. So in this case, the question has to be read carefully. The question pointers, in case it's a definition-based question, has to be kept in mind and answered accordingly. Moving on to question number 3. Question 3 is about one of the following results for the cross between surface fish and cave fish. This was a part of the passage. Passage में ये जिक्र किया गया है. Would invalidate Riddle's inference from the experiment. तो यहाँ हमें invalidate करना है कि अगर ऐसा एक क्रॉस होगा तो वो कैसे रिडल के इन्फरेंस को इनवैलिडेट करेगा। तो रिडल की इन्फरेंस क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे वैलिडेट या इनवैलिडेट कर सकते हैं। रिडल ने ये इन्फर किया है कि वाइट फैट और येलो फैट ये दोनों ही तरह की फिश में देखने को मिलता है, चाहे फिश जो है वो आईलेस हो या विथ आईज हो, दोनों में व्हाइट और येलो फैट देखने को मिल सकता है। तो आईलेस होना या आईलेसनेस का होना या आईज का होना ये व्हाइट या येलो फैट के साथ जुड़ा हुआ कोई पैरामीटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फिश आईज के साथ है तो उसमें येलो फैट नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि सारी फिश जो ब्लाइंड है उनमें येलो फैट ही देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट पे रिडल ने येलो फैट को सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड फिश के साथ जोड़ना जो है उसको खारिज किया है। करेक्ट। अगर हमें इनवैलिडेट करना है तो हमें इसका कुछ उल्टा सोचना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। ऑप्शंस आर, ए में लिखा है ओनली आईलेस ऑफस्प्रिंग हैड येलो फैट। ये रिडल के पॉइंट से ठीक उल्टा है, मतलब ये रिडल के
इन्फरेंस को इनवैलिडेट कर सकता है, क्योंकि रिडल ने कहा है कि येलो फैट का आईलेस या आईज के प्रेजेंस के होने के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ए मेक्स सेंस, इसको होल्ड कर लेते हैं, ये सही लग रहा है। सम ऑफस्प्रिंग विथ आईज हैड वाइट फैट, ये रिडल के ऑब्जर्वेशन के साथ टैली कर रहा है, तो ये तो वैलिडेट करेगा पॉइंट को। सम आईलेस ऑफस्प्रिंग हैड वाइट फैट, सेम पॉइंट ये भी है, ये भी वैलिडेट करेगा। सम ऑफस्प्रिंग विथ आईज हैड येलो फैट, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, which means B, C and D are in line of Riddle's inference from the experiment, but one is out of context because it contradicts the fact that Riddle has found out. So this will definitely invalidate Riddle's inference. Hence A. Moving on to the last question. On the basis of the information in the passage, what is the most likely function of carotenoids in Mexican टेट्रा केव फिश? इसका आंसर तो ऑप्शन देखे बिना ही दिया जा सकता है कि जो येलो फैट था, विच इज बिकॉज ऑफ कैरोटिनॉइड्स, was probably a way to help the blind cave dwelling Mexican tetrafish develop an ability to combat chronic inflammation, क्योंकि ये जो येलो फैट है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाने का एक एडेप्टेशन या तरीका हो सकता है, ऐसा रिडल ने फाइनली ऑब्जर्व किया है। लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। टू हेल्प द फैट सेल्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दिस इज नॉट द रीजन व्हाई दिस येलो फैट इज देयर। टू रेंडर ब्राइट येलो कलर टू द केव फिश, ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को दिखा रहा है। C is the correct option because it says to control inflammation from the bursting of fat cells, क्योंकि fat cells जब ज़्यादा स्टोर होती हैं, there is a possibility of inflammation and bursting, but since there is the yellow fat owing to carotenoids, therefore this can control the inflammation and avoid the bursting of fat cells. So C makes sense, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा है। To act as a substitute for eyes, now that sounds logical but it has not been mentioned anywhere. तो आंख ना होने का वो सब्सटीट्यूट नहीं है। आंख ना होने के जगह पर बहुत सारी ऐसी सेंसरी स्किल्स हैं जो फिश ने डेवलप की हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट करने का तरीका। और हाँ, फैट स्टोर करना भी इनडायरेक्टली एक तरीका है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है कि फंक्शन क्या है कैरोटिनॉइड्स का। तो फंक्शन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है। So this brings me to the end of today's discussion. Topics related to evolutionary biology have been there in the past in several CAT RCs and are likely to be there in the future as well. So let's keep reading such topics. Thank you.